ختم، شاہراہ پر ٹریفک کو کیا گیا بحال۔ یوم آزادی کے پیش نظر فضائی نگرانی کے لیے ڈرون کا استعمال۔ شہر سری نگر میں کئی مقامات پر ناکے، لال چوک میں سیکیورٹی ڈرل، چیکنگ پوائنٹس بھی کیے گئے قائم۔ داخلہ فیس پر پابندی کے حکم نامے کی خلاف ورزی کا انکشاف۔ بڑگام کے ایک نجی سکول کو لاکھوں روپے ایڈمیشن فیس، والدین کو واپس کرنے کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کے 11:30 ہونے کو ہے۔ آپ سری نگر اسٹوڈیو سے براہ راست اردو خبر نامہ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان رؤف فاروقی۔ سب سے پہلے بات کریں گے میر بازار انکاؤنٹر کے حوالے سے۔ ایک جنگجو کے جاں بحق ہونے پر فورسز کا جو انکاؤنٹر ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ شاہراہ پر ٹریفک کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ جنوبی ضلع کلگام کے ملپورہ میر بازار علاقے میں گزشتہ روز سپہر سے جاری معرکہ آرائی میں ایک جنگجو کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ پولیس بیان کے مطابق میر بازار میں گزشتہ روز جاری فورسز آپریشن ختم اور شاہراہ پر ٹریفک کو بحال کر دیا گیا ہے۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس انکاؤنٹر کے حوالے سے کیا کہا، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ 15 اگست 26 جنوری کے پہلے انپٹ جنرل رہتا ہے اور ہم لوگ پولیس سیکورٹی فورس الرٹ تھی۔ جب بی ایس ایف کی کنوائے آ رہی تھی، ایک بڑا سا بلڈنگ ہے، وہاں سے 2 ٹیررسٹ اندھادھند فائرنگ شروع کیا۔ اس میں ہمارا کوئی انجرڈ نہیں ہوا۔ سیکورٹی فورس نے اس کو پورا گھیر لیا، انکاؤنٹر جاری ہوا۔ رات میں جی او سی وکٹر فورس میں خود وہاں مانیٹر کیا۔ ہم لوگ راکٹ لانچر یوز کیے، ملٹنٹ کو رات میں نیوٹرلائز کر لیے۔ کیونکہ رات میں سرچ کرنا مشکل تھا، آج مارننگ میں جب سرچ کیا گیا تو ایک پاکستانی ٹیرری جو عثمان کہا جاتا ہے، پچھلے 6 مہینہ سے ایکٹیو تھا، اس کا ڈیڈ باڈی ملا ہے اور وہاں سے بہت سارے سامان ملا۔ AK-47 میگزین، گرینیڈ، RPG-7 کا جو راکٹ لانچر گرینیڈ ملا ہے۔ اور یہ انسیڈنٹ شو کرتا ہے کہ کتنا بڑا حادثہ کرنے والا تھا۔ بہت دنوں کے بعد RPGs کا سیل ملا وہاں پر اور یہ سیکورٹی فورس پولیس مل کے بہت سا بڑا حادثہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ مجھے اپنے فورس پر، پولیس پر بہت گرو ہے۔ تو سر 15 اگست کو لے کر کس طرح کی سیکورٹی کے ارینجمنٹ کی؟ بہت ہر جگہ جیسے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کی پورا سیکورٹی ارینجمنٹ ہو رہا ہے، فیسنگ ہوا، چیکنگ ہو رہا ہے، ڈرون سے لوگوں کا سروائنس ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ٹیکنیکل سروائنس کر رہے ہیں اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، ہیڈ کوارٹر میں، سری نگر میں ہر جگہ انسیڈنٹ فری فنکشن کرائیں گے۔ عوام سے میں آگرہ کرتا ہوں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان ہر دم پہلے بھی کیا، ابھی بھی کر رہا ہے انسٹیگیٹ کر ملٹنٹ کو کہ ٹیرر انسیڈنٹ کر کے لوگوں کو اس میں شامل ہونے سے روکے۔ آپ ڈرے نہیں، آپ کا فورس پولیس تیار ہے، ہم لوگ سرکشا پردان کریں گے۔ آپ آئیں، شریک ہو فنکشن میں۔ سر یہ جو کل کا انسیڈنٹ ہے، کیا آپ کو انپٹس پہلے سے ہی تھے کہ اس طرح کے کچھ انسیڈنٹ ہو گئے؟ دیکھیے، پچھلے ایک سپتاہ سے جنرل انپٹ تھا کہ NH پر چاہے بارامولہ سری نگر روڈ پر ہو یا کاجی کنڈ سے لے کر پنتھا چوک بیچ میں کئی ٹیرر انسیڈنٹ کرنے والا ہے، اس لیے سیکورٹی فورس پولیس بہت تیار تھی۔ یہ شو کرتا ہے کہ ریسپانس دیکھیے سیکورٹی فورس کا ریسپانس کتنا اچھا رہا ہے کہ ملٹن فائرنگ کرتے ریٹیلیٹ کیا اور ملٹن کو بھاگنے دے دیا، گھیر ڈالا وہاں پہ۔ تو آپ مانتے ہیں سر کہ یہ پلوامہ ٹائپ آپریشن تھا، ان کا مطلب انسیڈنٹ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے، جو پلوامہ ID بلاسٹ ہوا تھا، لیکن اس کے پاس AK-47 تھا، RPG-7 کا لانچر بھی ملا ہے اور سیل بھی ملا۔ یہ شو کرتا ہے کہ بہت بڑا حادثہ کرنا تھا، لیکن اس میں ہم لوگ کو سکسیس ملا ہے۔ عثمان جو بہت خطرناک LET کا ٹیررسٹ پاکستانی ہے، اس کو مار گرانے میں ایک پاکستانی ملٹنٹ جاں بحق ہوا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے ایسا اندیشہ تھا کہ نیشنل ہائی وے پہ حملہ ہو سکتا ہے یوم آزادی کے پیش نظر، اور سیکیورٹی کافی زیادہ متحرک تھی اور جس کے بنا پہ یہ جو آج انکاؤنٹر ہوا، اس میں ایک فارن ملٹنٹ کو جاں بحق ہونے کی خبر بتائی جا رہی ہے۔ ادھر سیکیورٹی کے حوالے سے ہی بات کریں تو 75ویں یوم آزادی کے پیش نظر سری نگر کی بات کریں تو فضائی نگرانی کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہر سری نگر میں کئی مقامات پر ناکے لگائے گئے ہیں،
लोगों की जामा तलाशी भी ली जा रही है। और अगर पूरी वादी की बात करें तो वादी के मुख्तलिफ कस्बाजात से भी जो शाहराहों पर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने के अहकाम सादर किए गए हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी शहर श्रीनगर के साथ साथ मुख्तलिफ ज़िला हेड क्वार्टर पर जो है उनको तैनात रखा गया है, यौम आज़ादी के पेश नज़र कि कोई हादसा ना हो। और श्रीनगर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो सूरत हाल श्रीनगर की बताए तो ड्रोन का इस्तेमाल भी श्रीनगर में किया जा रहा है। तो क्या कुछ अभी सूरत हाल है श्रीनगर की 15 अगस्त के पेश नज़र? हम बराह रास्त राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी अमजद खान से श्रीनगर से, उनसे ही जानना चाहेंगे तफसीलात। अमजद, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। सिक्योरिटी के हवाले से ज़रा बताइए, क्योंकि कल जो मीर बाज़ार का इनकाउंटर और उसके बाद श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ाया गया है, यौम आज़ादी के पेश नज़र और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और काफ़ी वक्त के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो गाड़ियों में जो राहगीर चल रहे हैं उनकी जामा तलाशी भी ली जा रही है। देखिए, 15 अगस्त को पूरे देश के अंदर जो 75वां आज़ादी का दिवस है वो मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब होने वाली है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर झंडा फहराएंगे। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर जो सिक्योरिटी सर्विलेंस है उसको बढ़ा दिया गया है। जमीनी स्तर पर अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी के अलग अलग जगहों पर एंट्री एग्जिट्स पर नाके लगाए गए हैं। सिटी के अंदरूनी इलाकों में भी अलग अलग जगहों पर चेकिंग लगातार की जा रही है। और उसके साथ साथ जो हवाई सर्विलेंस करेंगे और लगभग 50 से ज्यादा ऐसे ड्रोन हैं जो पूरी श्रीनगर सिटी को कवर करने पर लगा दिए गए हैं। यानी पूरी तरह से जो तकनीक का इस्तेमाल है, जिस तरह से आईजीपी कश्मीर ने कहा कि तकनीकी इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है कि कहीं पर किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। जिस तरह से मीर बाजार एनकाउंटर में हमने देखा है कि कितना बड़ा कैशे मिला है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कुछ हो तो फिर बहुत बड़ा होने वाला था जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में, लेकिन उसको टाल दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी हाइप की, तो लगातार साउथ कश्मीर से एंट्री होने वाले जितने भी पॉइंट श्रीनगर की तरफ को है उन पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं, वहां पर सिक्योरिटी बूस्ट बढ़ा दिया गया है। और लगातार आने जाने वाली सभी गाड़ियों की जो हम कहें तो गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, लोगों की चेकिंग हो रही है, सामान की चेकिंग हो रही है, आइडेंटिफिकेशन चेकिंग की जा रही है लोगों की। कुछ लोगों से सवाल जवाब भी करते हुए कहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो जहां पर वेन्यू है, जहां पर परेड होनी है, उस वेन्यू को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उस रोड पर आने जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है। आज सुबह से ही लगातार उस रोड के दोनों ही एंड्स पर हम लोग जिस तरह से सुनवार टू गुपकार रोड की बात करें, डलगेट से जहां पर जो शुरुआत होती है जिस रोड की, पूरी तरह से उसको सीज कर दिया गया है। और जो सिक्योरिटी की तैनाती है वो उस वेन्यू के आसपास की बात करें, शहर के किसी भी कोने की आप बात करें या फिर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के पूरी तरह से सीज कर दिए गए हैं। जो साउथ कश्मीर से जो ट्रैफिक श्रीनगर की तरफ आता है, क्या उसको डाइवर्ट किया गया है? देखिए, फिलहाल सुबह से अगर हम देखें तो जब भी एनकाउंटर शुरू हुआ था उसके बाद जो डाइवर्जन है वो लगा दिया गया था और ट्रैफिक को कई तरह से कहीं तो हॉल्ट पर रखा गया था नेशनल हाईवे पर। लेकिन अभी से कुछ समय पहले उस ट्रैफिक को पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है जो हाईवे से श्रीनगर की तरफ आ रहा था। लेकिन जो नेशनल हाईवे हमारा आता है जिसको अगेन के लिए खुला है, लेकिन उसके बाद जब आप जैसे ही शेर कश्मीर स्टेडियम की तरफ मुड़े वो रास्ता कर दिया गया है। यानी उस रोड पर को भी किसी तरह की एंट्री एग्जिट की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, डलगेट से जाने वाले जो एरिया है, टीआरसी का रोड है, वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहां पर भी किसी तरह की एंट्री एग्जिट शेर कश्मीर स्टेडियम की तरफ इजाजत उसकी नहीं दी जा रही है। उसको डाइवर्टेड कर दिया गया है पूरे रोड को, और वो रोड पूरा डलगेट से सर्कल होकर के श्रीनगर के बाकी हिस्सों के साथ कनेक्ट हो रहा है। चलिए अमजद, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अमजद खान तफसीलात दे रहे थे शहर श्रीनगर के हवाले से कि जो सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा तैनात किया गया है शेर कश्मीर स्टेडियम के इर्द गिर्द, और जो रास्ते जाते हैं शेर कश्मीर स्टेडियम की तरफ उनको फिलहाल बंद रख दिया गया है 15 अगस्त की तकरीब के हवाले से। इधर बात करें यौम आज़ादी के हवाले से कि जो आज फुल ड्रेस रिहर्सल्स का इनकाद किया गया है और श्रीनगर के साथ साथ शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर के साथ साथ हर एक ज़िला हेडक्वार्टर पे आज फुल रिहर्सल जो है आज हुई है। और श्रीनगर की बात करें तो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने झंडा लहराया और परेड पे सलामी ली। और इसके साथ साथ अगर बात करें बारामूला में भी इसी तरह की तकरीबात हुई है। पहले हम आप तक जो डिवीजनल कमिश्नर श्रीनगर उन्होंने इस प्रोग्राम के हवाले से, इंतजामात के हवाले से मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, वो हम आप तक पहुंचा रहे, फिर बारामूला के हवाले से बात करेंगे। 75वां आज़ादी का यौम आज़ादी दिन परसों आ रहा है। आज उसकी फुल डे रिहर्सल है
यहाँ फुल डे रिहर्सल जो है, फुल ड्रेस रिहर्सल जो है सभी एहतराम और शान और शौकत के साथ यहाँ हो रही है, जिसमें परेड का इंस्पेक्शन, परेड कंटिजेंट की परेड, उसके बाद अभी जो कल्चरल आइटम्स है वो सभी शामिल है। जो भी तैयारियां हैं उसका जायजा लिया जा रहा है, कहीं उसमें कोई कमी है तो आज ही उसमें दुरुस्त करके जो उसको तकमील तक ले जाया जाएगा, ताकि जो उसमें कोई भी कमी न रहे। हमने प्रयास किया है पिछले 9 तारीख से जो है यहाँ परेड का रिहर्सल हो रहा है, उससे पहले जो हमारा खुनमो है, खुनमो में जो पुलिस इंस्टीट्यूट है उसमें इसका ये हुआ था, तैयारी हुई थी परेड की। 9 तारीख से इस ग्राउंड पर तैयारी हो रही है। कल्चरल फंक्शंस की भी जो तैयारी जो है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हॉल है उसमें हो रही है पिछले 1 हफ्ता से ज्यादा के पीरियड से। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हम परसों के दिन यौम आज़ादी अच्छी तरीके से श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में सबसे बड़ी तकरीब होगी और तकरीब के हवाले से बात कर रहे थे और इंतजामात के हवाले से बात कर रहे थे डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोल। इधर बारामूला के हवाले से बात करें, वहां पे भी आज जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है और वहां पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने परेड पे सलामी ली और सिक्योरिटी के हवाले से और तकरीब को अहसन तरीके से मुनक्कद करने के हवाले से SSP बारामूला ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की। देखिए 15 अगस्त हज़्ब मामूल हमारा बड़ा जोश खरोश से मनाया जाएगा और इसमें जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं पुख्ता किए गए हैं और हमारे तरफ से जो आज जैसे ड्रेस रिहर्सल है इसके लिए भी हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल है और हमारी कोशिश यही है कि लोग आराम से, अमन से और बड़ी खुशी से, खुशहाली से इंडिपेंडेंस डे और ख़ासकर ये साल जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, 25th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसमें जो है लोग शिरकत करें और बढ़ चढ़ कर शिरकत करें और कभी भी किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई इसमें असुविधा ना हो। देखिए मौसम की जहाँ तक पेशेंगोई की चलें तो शायद बीच में स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स की जो पेशेंगोई वो आई है और उसके लिए जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास जो यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं और बाकी यहाँ पे जो लगाए गए हैं आई थिंक उनमें इंतजाम कर लिया गया है। बट इसके अलावा जो हमारा परेड है बहुत भी मामूल, चाहे कैसा भी मौसम हो वो चलेगा और बारिश हो या कुछ भी हो उसके बावजूद हमारा प्रोग्राम जो है पूरी तरह चलेगा। इस परेड में बच्चे बहुत सारे स्कूल्स, कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेज और इसके अलावा हमारे जो कंटिजेंट्स हैं डिफरेंट फोर्सेज के वो सब इसमें कल्चरल ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, डांस में पार्टिसिपेट किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम भी यहाँ पे कल्चरल के लिए आए हैं, कल्चरल डांस के लिए। सो अब करेंगे 15 अगस्त का एंजॉय करना चाहिए बहुत ज्यादा, लाइक हर चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए देश के लिए, लाइक फ्रॉम इंडिया। स्कूल वालों ने बहुत टाइम से कह रहे हैं इस पार्टिसिपेट, लेकिन मैंने आज पहली बार लिया है इसमें सर और आज बहुत सारा एक्साइटेड है इसके लिए, तो देखते हैं इंशाल्लाह अच्छा होगा। सर इसका नाम कोविड-19 के रिलेटेड है, तो वही जैसे कि स्टूडेंट्स घर बैठ के से बहुत ज़्यादा ये पैनिक हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से सर आज हमने एक्ट बनाया। और आज भी जोश खरोश में सारे बच्चे भी हैं, इवन उनके जो स्कॉट टीचर उनके साथ हैं वो लोग भी काफ़ी जोश खरोश में इस समय यहाँ पर हैं। और इंतज़ाम की जहाँ पे बात करें तो इंतज़ाम पहले भी बहुत ही अच्छे थे और इस बार भी बहुत ही अच्छे हैं। हमारी जो थीम है दैट इज़ मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड-19, दिल्ली पब्लिक स्कूल को यही थीम मिला हुआ है। और जी काफी तादाद में इस बार, क्योंकि अब तो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो स्टेट नहीं है, वो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से जो मुल्क हमारा हिंदुस्तान ही है, इस मुल्क हमारा हिंदुस्तान ही है। 15 अगस्त 1947 जैसे हम सबको मालूम है कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसे हम स्वतंत्र दिवस कहते हैं, और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना थे 1947 में, क्योंकि हम लोगों अंग्रेजी शासन से जो है इस समय आज़ाद हुए थे। एक लंबा दौर चला था अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी राज का यहाँ पे, तो इस दिन हम आज़ाद हुए थे। ये एक खुशी की बात है। ये बहुत अच्छे किए गए, मुझे तो अच्छा लगा।
بہت اچھے یہاں پہ مطلب رکھی گئے ہمارے لیے، چیئرز الگ الگ رکھی گئی ہمارے لیے، بہت اچھا ہے یہاں پہ سب کچھ. تو کس میں آپ کو آج پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ ہاں ہم لوگوں نے یہاں پہ 15 اگست میں پارٹیسپیٹ کیا. ہمارا تھیم مینٹل ہیلتھ ان کووڈ-19 ہے، جیسے کہ ہم دکھائیں گے کہ کووڈ-19 میں ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہم کیا. چلے ایس ایس پی بارہمولہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اسکولی بچے جو وہ رنگا رنگ پروگرام میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور انتظار ہوگا 15 اگست کا جب وہ اپنا پروگرام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. ناظرین آپ خبرنامہ دیکھ رہے ہیں، بات کریں گے کووڈ-19 کے بیچ میں سرکار کا حکم نامہ جاری ہوا تھا پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے، کیونکہ فیس کو لے کر کئی نہ کئی جو والدین ہیں وہ بار بار لگاتار شکایتیں کرتے رہتے تھے کہ سکول جو ہے سکول انتظامیہ پیرنٹس کو بچوں کا فیس دینے کے حوالے سے باتیں کر رہی ہے، اور جو داخلہ فیس ہے یعنی ایڈمیشن فیس پر پابندی کے حوالے سے ایک حکم نامہ بھی جاری ہوا تھا اور جس کی خلاف ورزی کا انکشاف ہوا ہے ضلع بڑگام میں. ایک نجی سکول کو لاکھوں روپے ایڈمیشن فیس جو انہوں نے والدین سے وصول کی ہے، اس حوالے سے ایک تحریری خط جو ہے وہ محکمہ ایجوکیشن کو گیا ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بڑگام ہے ان کو گیا ہے، اور جو فی فکسیشن کمیٹی ہے انہوں نے ایک اپنی نوعیت کا ایک تاریخ ساز فیصلہ اس حوالے سے لیا ہے اس شکایت کے حوالے سے، اور جو ایک بڑے پرائیویٹ سکول کے خلاف انہوں نے احکامات صادر کیے ہیں کہ جو بھی انہوں نے ایڈمیشن فیس یعنی داخلہ فیس بچوں سے وصول کی ہے ان کے والدین کو وہ جلد سے جلد واپس کیا جائے. لاکھوں روپے کی رقم وصول کی گئی ہے مذکورہ سکول سے. آپ کو یاد ہوگا کہ 50,000 روپے کے قریب فیکس کے حساب سے ایک تحریری خط جو ہے وہ انتظامیہ کو لکھا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ہر ایک بچے سے 50,000 روپیہ جو ہے وصول کیا جا رہا ہے. فی فکسیشن کمیٹی کے چیئرمین مظفر حسین عطار نے یہ حکم نامہ جاری کیا فاؤنڈیشن ورلڈ اسکول ہمامہ کے خلاف کہ جو بھی انہوں نے داخلہ فیس لیا ہے اس کو جلد سے جلد والدین کو واپس کیا جائے. ایک اپنی نوعیت کا ایک بڑا فیصلہ، کہیں نہ کہیں لوگ اس کی سراہنا کر رہے ہیں کیونکہ کووڈ-19 کی بات کریں تو کووڈ-19 کے بیچ میں بھی سکول جو ہے سکول انتظامیہ جو یہاں کے ہیں وہ بچوں سے فیس وصول کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں لوگ اس حوالے سے شکایتیں کر رہے ہیں اور کئی بار یہاں کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن تک یہ معاملہ چلا گیا تھا مگر کوئی خاطر کا فیصلہ سامنے نہیں آیا تھا. اور آج جو فیس فکسیشن کمیٹی نے جس طرح کے احکامات صادر کیے ہیں لوگوں نے اس حوالے سے اس کی سراہنا کی. ہم اس سکول کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ضلع بڑگام میں یہ سکول پڑھتا ہے اور ضلع بڑگام کی جو انتظامیہ ہے انہی کو یہ خط جو ہے ارسال ہوا تھا. تو ہمارے ساتھی محمد اشرف ڈار براہ راست ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے ہی اور تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. اشرف ذرا بتائیے اس سکول کے حوالے سے یہ جو تحریری خط کب جو لکھا گیا تھا، کب ارسال ہوا تھا محکمہ تعلیم کے ذمہ داروں کو، اور جو یہ فیصلہ اب لیا گیا ہے سکول فیس کو واپس کرنے کا، لوگ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے روپ، اگر ہم پرائیویٹ سکولوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے سے یہ شکایتیں موصول ہو رہی تھی کہ جو پرائیویٹ سکولز ہے وہ تو ایک تو ڈونیشن لے رہی ہے، دوسرا ہے کہ جو فیس جو پیرنٹوں سے وصول کرے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کووڈ-19 یا 5 اگست کے بعد جس طرح ہم نے دیکھا سکول بند رہے، اس کے بعد لگاتار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ جو پرائیویٹ سکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک تو ٹیوشن فیس دے دو اور دوسرا جو گاڑیوں کا فیس. اس کے بعد کافی ایسی کمیٹیاں بھی بنی، کافی ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو پیرنٹس تھے وہ جگہ جگہ شکایتیں کر رہی تھی. پھر فی الحال وقت ایسا آیا کہ جب بڑگام کے ایک مامد میں ایک ورلڈ فاؤنڈیشن سکول ہے، وہاں پر جو ہے ڈونیشن لیا جا رہا ہے. ایڈمیشن جب بچے کو کرنا تھا تو وہاں پر اس کے ڈونیشن کے نام پہ 50,000 دے رہا. حالانکہ پہلے ہی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی جب بھی کسی سکول میں ایڈمیشن ہوگا تو وہاں پر کوئی ڈونیشن نہیں لیا جائے گا. مگر اس سکول کے خلاف کافی ایسی شکایتیں آ رہی تھی اور پیرنٹس نے بھی جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو تحریری میں لکھا کہ یہ سکول جو ہے 50,000 روپے جو ہے ڈونیشن دے رہا ہے. اس کے بعد کئی ایسی کمیٹی بنی جو کہ ڈویژن لیول پر کمیٹی بنی یعنی ڈائریکٹر آفس سے بنی، اور اس کے بعد جو ہے بڑگام چیف ایجوکیشن آفس کی طرف سے بھی کمیٹی بنی، اور دونوں کمیٹیوں نے جب رپورٹ جو سامنے آئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے جو ہے ڈونیشن کے نام پہ جو فیس وصول کیا ہے اس کو اب واپس کرنا ہوگا. ابھی بھی ایک کمیٹی ہے جو کہ بڑگام کی جو کمیٹی ہے جو چیف ایجوکیشن آفس نے کمیٹی بنائی تھی وہ ابھی بھی اس پہ جو ہے رپورٹ تیار کری ہے. کہیں نہ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے ڈونیشن کے نام پہ جو پیسہ لیا ہے اب ان کو واپس کرنا ہوگا، کیونکہ جو پیرنٹس ہے وہ شکایت لگاتار کرے اور انہوں نے خود ڈائریکٹر آفس بھی گئے، وہاں سے کمیٹیاں بنی.
तो अक्सर हम देखते हैं जो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इस तरह की उंगलियां उठ रही थी, और इसी के बावजूद जो है अब चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने जो कमेटी बनाई है। ये भी बताइए क्योंकि लोग भी इस हवाले से काफी टाइम से बातें कर रहे थे कोविड-19 के बीच में, जहां अभी भी तदरीसी अमल स्कूल में बंद पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी स्कूलों के जो प्राइवेट स्कूल इंतजामिया है वो बच्चों से फीस वसूल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वालिदैन को या तो व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज के जरिए कहा जा रहा है कि जो उनका आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस है, वो क्लियर किया जाए। तो अब जब ये फैसला सामने आया, अपनी नवीयत का ये पहला फैसला है जो फिक्सेशन कमेटी ने दिया है कि इस स्कूल को अब पैसा जो है वापस देना है, तो लोगों के साथ आपने बात की है, तो कैसा रद्द-ए-अमल है लोगों का, क्या कह रहे हैं लोग इस हवाले से? देखिए रूप, आपको मैं बताते चलूं कि हमने देखा जब यहाँ स्कूल जब कोविड-19 हुआ या 5 अगस्त को जब स्कूल बंद रहे, तो कई ऐसे प्राइवेट स्कूल, बड़े स्कूल, उन्होंने जो है प्राइवेट स्टाफ जो उनका था, चाहे वो ड्राइवर्स थे या कुछ पियानस होते हैं, उनको निकाला, और कई ऐसे स्कूल थे जहाँ पर इस तरह की शिकायतें आ रही थी। फिर जो इन्होंने जो फीस मांगना, ट्यूशन फीस मांगना शुरू कर दिया कि हमें जो टीचर्स है उनको अब फीस देना, उनको तनख्वाह देनी है, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है वो तंग आ गए थे। उसके बाद अब पेरेंट इस फैसले से काफी खुश दिख रहे हैं कि इस तरह का फैसला गवर्नमेंट ने लिया। ये अच्छी बात है, क्योंकि जब स्कूल नहीं तो फीस क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट इदारा है, तो जब बच्चे जाएंगे तभी हम फीस देंगे। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है उनमें खुशी दिख रही है इस फैसले से कि इस तरह का फैसला जब गवर्नमेंट ने लिया कि जो प्राइवेट स्कूल है उसने जो डोनेशन के नाम पे जो पैसा वसूल किया था, करीबन करोड़ों में बताया जा रहा है, अब उसको वापस करना है, तो पेरेंट्स उसमें काफी ज्यादा खुशी देखने को मिलती है। जी रूप। अशरफ, जरा आखिर में ये भी बताइए, क्योंकि जो महकमे तालीम के जिम्मेदारान हैं जिला के, उनके साथ आपकी बात हुई है, मुख्तलिफ स्कूलों के हवाले से शिकायतें हैं उनके पास, जो तहरीरी तौर इरसाल किए हैं वालिदैन ने या लोगों ने या सिविल सोसाइटी से वाबस्ता जो लोग हैं, तो उनके हवाले से क्या कोई कार्रवाई हो रही है या आइंदा आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई हो सकती है? इस पर कोई बात हुई है जो आपकी जिम्मेदारों के साथ बात की आपने? देखिए रूफ, जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम है उनसे हमने जानने की कोशिश की कि अक्सर हम शिकायतें देखते हैं, तो क्या कुछ उन शिकायतों पे क्या अमल होती है या उस पर कोई कार्रवाई होती है। उसने कहा कि अगर कोई जेन्युइन शिकायत जहां से भी हमें मिलती है हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, चाहे स्कूल इंतजामिया की तरफ से हो, यानी कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोग शिकायत करें उसका हम अजाला करें। मगर ग्राउंड लेवल पर हम देखते हैं कई ऐसे स्कूलों की तरफ से शिकायतें, पेरेंट्स की तरफ से शिकायतें तो मौसूल होती थी, मगर जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इसमें लीनियंसी दिखा रहा है। क्या उसमें कोई प्राइवेट अप्रोच होता है? ऐसा भी कुछ बहुत ऐसे मामले हैं जिन पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बराह रास्त जो एप्लीकेंट है, जो कंप्लेंट्स करते हैं, उनको जो उनके कंप्लेंट्स पे उनकी जो शिकायतें होती हैं उनको कहीं ना कहीं अजाला होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से राहत की सांस ले। जी हो अशरफ, ये भी बताइए, क्योंकि यौम आज़ादी का दिन जो मनाने जा रहे हैं, तो बडगाम के हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ इंतजाम रखे गए, इस पर भी जरा नाजरीन तक बात पहुंचाइए। देखिए रोप, आज आपको बता दें 13 अगस्त है, आज फुल ड्रेस रिहर्सल जो बडगाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई, और काफी ज्यादा सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है, और जगह जगह पे हमने देखे नाके लगाए दिए गए हैं। जितने भी एग्जिट पॉइंट्स है जो बडगाम की तरफ आते हैं वहां पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, यानी जितने भी व्हीकल्स आते हैं प्राइवेट व्हीकल को चेक किया जाता है, चाहे मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को काफी ज्यादा सख्त किया गया है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कल जिस तरह से हाईवे पे अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं जैसे अटैक हो उसके बाद ज्यादा ही जो है सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया, ताकि जो 15 अगस्त की तकरीब है वो खुशहाली के साथ अंजाम दी जाए। जी चलिए अशरफ, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी अशरफ बात कर रहे थे, और बात हो रही थी हुक्मनामे के हवाले से, सरकार का हुक्मनामा प्राइवेट स्कूल के हवाले से, और एक बड़े स्कूल ने हुक्मनामे की धज्जियां उड़ाई है और पैसा वसूल किया वालिदैन से। अब जो फिक्सेशन कमेटी है उन्होंने जो रिपोर्ट सामने रखी है उसमें कहा गया, स्कूल को कहा गया कि वो जल्द से जल्द जो रकूमत उन्होंने वालिदैन से हासिल की है, वो रकूमत लाखों की तादाद में है, उनको जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। और जो मुख्तलिफ स्कूल है, निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनके खिलाफ भी तहरीरी तौर पर इस साल जो है खत किए गए हैं जिम्मेदारों को, मगर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और आज पहला ऐसा वाक़ा जो है सामने आया है जहां पे फिक्सेशन कमेटी ने इस स्कूल के खिलाफ जो है कार्रवाई के अहकामात सादिर किए हैं। नाज़रीन, इधर बात करें टंगमर्ग नारबल से टंगमर्ग रोड के हवाले से, खोचीपोरा के मुकाम पे 4 महीने पहले ये जो रोड है ये ढह गया था, और 4 महीने से अभी तक इस रोड पे काम नहीं हुआ है। आप विजुअल्स के जरिए देख सकते हैं, एक झंडा जरूर वहां पे लगाया गया है, मगर यहाँ पे हादसा होने का खतरा रह सकता है, क्योंकि नेशनल हाईवे है, इस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इस रोड पे रहता है, और दूसरा ये जो सड़क है ये गुलमर्ग की तरफ भी जाती है, तो टूरिस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा जो रश इस सड़क पे रहता है, तो हादसा कभी भी हो सकता है इस सड़क पे।
मगर आज तक इसको ठीक नहीं किया गया है। 4 महीने का वक्फा गुजर गया, लोगों ने ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया है इंतज़ामिया के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद जो सरकारी अफसरान हैं महकमे RNB के, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है टंगमर्ग डिवीजन के, वो भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। आप सुनिए क्या कहना है इनका। हाजी अब्दुल अशवत वारिया काल वुचान बिल्कुल झंडस जब बारह शूर तो पद जब मतलब लोक बचन या लौंग टूंड आबि जोर तमिस लोग ओन आबि जोर ठोकर लगे पता मुश्किल गो सब आप कहीं नहीं कर आज गए 4 पेठी जाते लगे अतन पसंद कहन न कहें तम तो अल्लाह ताला पास अस गुनाह कर अगर RNB लोकल रोड मतलब टूरिस्ट प्लेस या अल्लाह ताला करने दसी पसंद या तो कन बुझाटा कल तो डंडा थो खड़ा कर खुदा खोचान हालांकि टूरिस्ट वास्ते क्या कसा बेसिकली वहाँ के यहाँ नीचे से एक कलवर्ट छोटे से स्पैन का जा रहा था, लेकिन बहुत पुराना बना हुआ है, वो सिंक हुआ था थोड़ी बहुत पोर्शन पे, लेकिन हमने रिसेंटली इसको क्लियर वहाँ नीचे से किया। लेकिन हमने ये भी जो पहले वहाँ वो देखना था, वो इरिगेशन का मसला था, उसके लिए हमने उसको रेस्टोर कर दिया। फिर भी हमने ये जो लाल रेड फ्लैग वगैरह हमने रखा फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। फिर भी वहाँ कैरेज वे इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। अभी 14-15 फुट रोड जो साइड में है वो तो चल रहा है, लेकिन ये हमने जो पत्थर वगैरह वहाँ रखे और वो लाल झंडे रखे फॉर जस्ट जनरल पब्लिक की सेफ्टी के लिए, की काशस। तो उसके अलावा हमने इसमें एस्टिमेशन भी की है, वी आर सबमिट द एस्टिमेट्स के वी आर वेटिंग फॉर दिस ए, तो उसके बाद टेंडर। चले, इस रोड पे काम होगा, एस्टिमेशन जो है वो दिया गया है और जल्द इस पे काम होगा। लोगों के जो खदशात है उस पे बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB डिवीजन टंगमर्ग। इसके साथ ही अभी तक के खबरनामे से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।